Hello students, welcome to today's class. Today we will continue the remaining chapter, which is nutrition in plants. Okay? So students, in the previous class we all studied that plants synthesis carbohydrates in the form of glucose. Okay? So today we will study the synthesis of plants food other than carbohydrates, that is glucose. Okay, so today we will study that how plants make another nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So students, we all know that we also eat the plant sources as food, okay, which are wheat, rice and pulses. So this food contains these all nutrients. Okay, so how this all nutrients synthesis in plants? We studied only about carbohydrates. So what are these? How they synthesis? How plants synthesis these four nutrients? So we will study this only. Okay, हम सबको पता है कि हम लोग प्लांट्स के फूड ये खाते हैं कि वीट्स, राइस, पल्सेस खाते हैं एज अ प्लांट फूड. ओके, सो फूड के रूप में. तो हम लोग आज यही पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के प्लांट्स ये चारों एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे सिंथेसिस करते हैं. ओके, सो देखो यहाँ पे देखो, हियर यू कैन सी दैट फोटोसिंथेसिस मेक carbohydrates. Okay, so what is carbohydrate? Carbohydrate is made up of three elements, that is carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so what about these proteins and fats? So we also know that proteins contains nitrogen. So how do plants obtain nitrogen? Because you all know that nitrogen is found in the form of gas which is present in air. So how plants take that nitrogen in soluble form? So how they take nitrogen in soluble form? They convert gaseous nitrogen into soluble nitrogen with the help of a bacteria, rhizobium, which is present in the roots of the leguminous plants which we eat. Okay, so plants से हम लोग को ये पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स बना था, प्लांट फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स बना था. तो कार्बोहाइड्रेट्स किस तीन एलिमेंट से बने हुए हैं? तो वो क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो प्रोटीन्स और फैट्स का क्या मतलब कैसे बना है ये? तो बट हम लोग को ये भी पता है कि प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है, और हम लोग को ये भी पता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट कैसा फॉर्म में प्रेजेंट है? एयर फॉर्म में प्रेजेंट है. तो ये नाइट्रोजन को प्लांट्स कैसे सॉल्यूबल फॉर्म में अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब प्रोटीन्स बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं? तो कैसे यूज करते हैं? There is a rhizobium bacteria which converts the gaseous nitrogen into soluble nitrogen. Okay, and they can also use that nitrogenous fertilizers and manure. Okay, I hope you all understood this. So another one, we will study the other modes of nutrition in plants. Okay, so there are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food like humans and animals. Such plants depends on the food produced by another plants. Okay, they use the heterotrophic mode of nutrition. Okay, पर कोई प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो भी अपना फूड सिंथेसाइज खुद से नहीं कर पाते हैं. तो वो भी ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड हो जाते हैं या फिर दूसरे कोई ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं. तो वो मोड को क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So all the heterotrophic plants are divided into three main groups, which are parasitic plants, insectivorous plants and saprotrophs. Okay children? So now we will study what are parasites. Some plants take in ready-made food from the other organisms that are called host, are called parasite. So कोई plants ready-made food खाते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके, उनको क्या बोला जाता है? पैरासाइट. व्हाट इज अ होस्ट हियर? अ प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट्स पैरासाइट आर कॉल्ड होस्ट. होस्ट का मतलब क्या होता है? जो अदर ऑर्गेनिज्म पे वो प्लांट्स डिपेंड है, जो रेडीमेड फूड खाते हैं, उसी को बोला जाता है होस्ट.
तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कस्क्यूटा, एक पेड़ है जो अमार्बल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यू कैन सी हियर द येलो ट्रीज हियर, ऊपर जो येलो ट्रीज है आप सबको यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन नीचे एक दूसरा ट्री है। तो ये ऊपर में जो ट्री अपने आप उग गया है, ये किस पे डिपेंड है? इस पे डिपेंड है। तो ये कौन सा ट्री है? ये है होस्ट। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ये है होस्ट और ये है वो प्लांट्स जो रेडीमेड फूड खाता है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स रूट से ले रहा है अपने लिए, ये उसी को अपने लिए भी वो उससे थोड़ा शेयर लेके वो भी इसी के ऊपर डिपेंड होके जिंदा रह रहा है, ठीक है। तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। यू कैन सी इट इज क्लाइंबिंग on that host plant. The plant on which it is climbed, this is called host. Since it deprives the host valuable nutrients, it is called parasite. Okay, this plant is known as Cuscuta amarble. Okay, so now we will study what are the insectivorous plants. So some plants trap the insects and eat it that come in their contact. Such insect eating plants are called insectivorous plants. Example, pitcher plant. You can see this is a pitcher plant. This is a leaf modified into pitcher. This is a lid. Anytime if any insect passes from here, it captures it and eat it. Okay, so what is the function of this pitcher plant? The pitcher structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close to the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. So इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि pitcher structure मतलब एक मिट्टी का घड़ा जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। इसका जो स्ट्रक्चर है तो ये क्या है? एक मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का, ठीक है। तो ये इसका एपेक्स मतलब आप एपेक्स मतलब ये पहला ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या करता है? एक लीड के टाइप पे बना हुआ है। ये जैसे लीड ढक्कन के टाइप के जैसे जो बंद भी हो सकता है और ओपन क्लोज दोनों हो सकता है। तो इसके अंदर पिक्चर के अंदर कुछ हेयर स्ट्रक्चर है जो डाउनवर्ड्स मतलब थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे बना हुआ है। जब भी अगर कोई इंसेक्ट वहाँ पे बैठता है गलती से भी या फिर पास भी होता है तो वो लिड अपने आप बंद हो जाता है और इंसेक्ट वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, तो वो उसको खा लेता है। और उसका जो डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि हम लोग के अंदर भी हम लोग जो खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। वो सीक्रेट होता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब वो खाना हजम भी कर लेता है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? So now we will study what are saprotrophs. It is also a heterotrophic mode of nutrition. The category of organisms that take nutrients from dead and decaying matter are called saprotrophs. Okay, and the mode of nutrition is called saprophytic mode of nutrition. Example, fungi. तो ये कौन से organisms हैं? ये वो हैं जो डेड और कोई भी मरा हुआ चीज़, जैसे कि कोई भी वेस्ट चीज़ या फिर कोई डेड बॉडी हो या फिर कुछ भी, अगर हम लोग कोई खाना फेंक दे तो वो एक ना एक दिन वो सड़ जाता है। तो वही डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये वहाँ से अपना खाना लेते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, वहाँ पे अपना शेल्टर लेते हैं। तो ऐसे टाइप को ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स। और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फंगी। सो फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, कोट, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स that are left in hot and humid weather for long time. अगर कोई फंगी कहाँ पे ग्रो करता है? या फिर कोई पिकल्स में मतलब अचार में ग्रो करता है, लेदर में भी ग्रो करता है, क्लोथ्स हमारे कपड़े में, या फिर कोई अलग आर्टिकल्स में जो बहुत देर तक एक गर्म और ह्यूमिड मतलब हॉट मतलब तो गर्म और ह्यूमिड मतलब थोड़ा गीला वेदर में वो अगर उसको रख दे तो फंगी वहाँ पे ग्रो करने लगता है। तो फंगल spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Okay, you can see here the fungi growing on bread. Okay, this is the zoom version. थोड़ा सा close करके ये दिखाया गया कि see, you can see here the fungi. Okay.
So now we will study about a term that is symbiotic relationship. So what is symbiotic relationship? The living together of two different species of plants as if they are parts of the same plant and help each other in obtaining food are called symbiosis, and such plants are known as symbiotic plants having symbiotic relationship. Okay, अगर कोई भी दो स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ एक साथ रह रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि अपना न्यूट्रिएंट्स शेयर कर रहे हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, ऐसे टाइप को रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या है? For certain fungi live in the roots of trees. The trees provides nutrition to the fungus and in return receives help from it, take up water, nutrients from the soil. This association is very important for the tree. तो एक तरह का फंगी होता है जो ट्री के रूट्स में रहता है, तो वो ट्री को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, नहीं, ट्री फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न में वो कैसे हेल्प करता है? वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ट्री को रिटर्न करता है. तो ये एसोसिएशन बहुत है इम्पोर्टेंट किस लिए है? ट्री क्यों है ट्रीज के लिए? क्योंकि ये ट्रीज को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है. ओके, सो और एक एग्जांपल है विच इज लिचेंस. Lichens are organisms in which a chlorophyll containing partner, which is alga, and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga provides food which prepares by photosynthesis. Same here, alga का भी lichens का भी वही है, उसमें एक alga और fungus रहते हैं जो एक दूसरे को water, minerals, shelter से help करते हैं. तो अभी लास्ट पॉइंट आ गए हैं हम लोग. Now we are in the end of the chapter. So what are these? What is this question? How nutrients are replenished in the soil? Nutrients soil में कैसे replenish होते हैं, मतलब कैसे अब soil में वो घुल जाते हैं एकदम अच्छी तरीके से. So first point क्या है? Plants absorb minerals, nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. ठीक है. Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. Fertilizers और manures जो plants में मौजूद रहते हैं, मतलब जो plants contain करते हैं, उसमें से क्या क्या nutrients है? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है. तो ये न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम ऐड होना चाहिए सॉइल में. ठीक है, सॉइल को एनरिच करने के लिए. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स. ओके, क्रॉप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स. आपको मैंने अभी थोड़ी देर बोला था कि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. तो दो नाइट्रोजन गैसेस अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. प्लांट्स कैन नॉट यूज इट in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. Plants को protein synthesis करने के लिए नाइट्रोजन soluble form में चाहिए. So the bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into a soluble form. But Rhizobium cannot make its own food, so it lives in the root of gram, peas, moong, beans. These are called leguminous. Okay, and provides them with nitrogen. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. So this bacteria which is called Rhizobium, वो प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और वो क्या करता है? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब गैशियस फॉर्म नाइट्रोजन का लेके ऑब्जर्व मतलब ये करके वो लेके कंजर्व करके वो क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में. लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए वो रूट्स मतलब जो ग्राम के ट्री प्लांट्स हैं, पीज हैं, मूंग है, दीज आर ऑल कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स. ठीक है, तो इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और बदले में थोड़ा बहुत खाना उनसे वो ट्रीज से थोड़ा लेता है. ठीक है, एंड दीज ऑल आर कॉल्ड लेग्यूमिनस. मतलब पल्सेस जो भी पल्सेस हम लोग देखे हो कि हम लोग फूड हिसाब से जो खाते हैं फूड सोच के, वो सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं. ओके, सो इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. तो इन रिटर्न में प्लांट्स, मैंने अभी बोला कि ब्लैक फूड और शेल्टर मिलता है उनको बैक्टीरिया को. दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. यहाँ पे भी वो एक अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं.
ठीक है. सो दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. दे डू नॉट नीड एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. तो इस एसोसिएशन बहुत हेल्पफुल है फार्मर्स लोग के लिए. उन लोग को नाइट्रोजन और ऐड करने का, नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइज़र होता है वो ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद है. ठीक है. सो दिस द चैप्टर इज एंड हियर स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. मैं आशा करती हूँ कि मैं आप सबको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने समझा पाई. आई ट्राई टू मेक दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग टू यू. आई थिंक आई एम एबल टू डू इट. सो दिस चैप्टर is ended, completed. I hope you all done your previous works which I give to you and also understood. These are the exercise questions which I am providing you. Okay, so first question, why do organisms need take food? Here is the answer. You read it and try to understand it because I already मैंने उसको आपको पहले से ही समझा दिया था. ठीक है. I already explained it to you. Okay, so this is the second question, that is what is the difference between parasite and saprotroph? These are the difference with examples I have written to you. I have just explained it to you, so you just read it and try to understand it. Okay, this is the third question which is very important. I didn't explain it, so I am now explaining it, that how would you test the presence of starch in leaves? तो हम लोग पहले ही पढ़े थे पिछले वीडियो में कि लीव्स में स्टार्च का भी प्रेजेंस होता है. तो ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को आयोडीन टेस्ट करना होगा. आयोडीन हमारे लैब में जब अगर हम लोग कभी आप लोग स्कूल जाओगे तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको आयोडीन दिया जाएगा और एक लीव्स दिया जाएगा. तो उसमें अगर आप आयोडीन डालोगे तो अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ वो लीव तो वो उसमें स्टार्च है, अगर नहीं हुआ तो उसमें स्टार्च नहीं है. ओके चिल्ड्रन. सो हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज गिव अ ब्रीफ description of the process of synthesis of food in green plants, which I already explained to you. You just read it and try to understand it. Okay, I hope you will all understand this because ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, और इसका फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे है. ओके, यहाँ तक आंसर है फोर्थ का. और ये 5 का क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया कि हाउ सन आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था सॉल्व करने के लिए. उसका एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है. आप इसको ज़रूर पढ़ना और समझने की कोशिश करना. ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे सन है, सन और प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स हैं. हार्बीवोर्स, आप पिछले क्लास में इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज हार्बीवोर्स एंड व्हाट इज कार्निवोर्स, एंड ऑल द आफ्टर डेथ एंड डीके all become decomposer. Okay, so this is the answer of the 5th question. Okay, this is the answer of this 13th question, that why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside the large greenhouse? What are the advantages to the farmers? This I explained it, that how we can replenish the soil. This is the only both are same. Okay, near about both are same. You just read it, you will understand it, I am sure. Okay, so students, this is the end of this chapter. Do all these notes and exercises in your fair copy. Obviously, very carefully learn it thoroughly and revise the chapter very carefully. If you have any doubt, you can ask me. I'm going to clear your all doubts. And yeah, students, do the exercise question number 7, 8, 9. This is very easy and short. I hope you all can do it. We will meet soon in the next chapter with the next chapter. Okay, मुझे लगा आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा ये क्लास. I tried a lot to make this chapter more interesting to you. I will try my level best again in the next chapter. So if you have any doubt, you can ask me. I am going to clear it. Okay students, till then stay safe in your home. We will meet soon with the next